Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well and can hear my voice. Okay, beta. So, as you all know that we have completed our very first chapter, that is the atomic structure, and we are now going to move on towards the past papers of it. As in the last class, we did a few of the MCQs at the end, although it was more of a revision kind of class in which we did discuss about the electron shells, and apart from that we also did discuss the whole atomic structure from the basics, so that we can now move on towards the MCQs and then the theory questions of this particular chapter. And then I'll be sending you this file, and then I'll be giving you the homework from this one. There are a few more new students in today's class, so obviously this won't be for them as well, as they will first cover up the previous things, then they can do this homework and the later things. तो बेटा यहाँ पर as we started off with the few questions of this chapter, the very first question that we did was question number 3, जो कि आप लोगों के लिए काफी easy था. It was clear enough. We can just have an idea of what we did up till now. This is your first chapter of atomic structure, and this is completed. Each and everything we have completed up till here. ठीक है बेटा. And now we are going to move on to the पास्ट पेपर क्वेश्चंस. अच्छा, इसमें इट्स लाइक दिस के इट्स नॉट दैट कि आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस जो है पास्ट पेपर ओरिएंटेड आपको दिए जा रहे हैं, जस्ट दैट यू हैव टू जस्ट गो ऑन विद द पास्ट पेपर्स. नॉट योर बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. जो भी हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, उन्हें हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं इन द क्लास. दैट इज वाई इट टेक्स अ फ्यू more of the classes to complete the things, because I try my best to cover each and everything that we have in a particular chapter. Then we move on to the questions, and then we can later go for the test and then the second chapter. This is probably our scheme which is going to be followed for even the upcoming chapters that we are going to do. तो बेटा यहाँ पर हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 1 को 2 को नजरअंदाज करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर दिया था. हमजा, योर माइक इज ऑन, यू हैव टू टर्न इट ऑफ. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 वी डिड, क्वेश्चन नंबर 4 वी डिड, and we probably have to now move on to the next set of questions. Although in this particular file we have questions also from the chemical bonding, so we will be focusing more on the questions that are totally based on the atomic structure. ठीक है बेटा. Okay, so I'll have look into this mic issue. ओके बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन दिस फाइल विच आई हैव ओवर हेयर वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस विच आर नॉट द topical questions of this chapter atomic structure. We have a few more questions of bonding as well, so we will be solely focusing on the questions that are from the chapter that we are currently doing, that is atomic structure. ठीक है बेटा, यहां तक हमने जो क्वेश्चंस करे थे बेटा, दैट वाज लास्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 को एक दफा वापस से जस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख ही सकते हैं, बिकॉज आफ्टर दीज टू वी हैव अ गैप ऑफ अ फ्यू क्वेश्चंस. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 तो बेटा बहुत ही इजी है. एन ऑक्सीजन एटम कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 8 प्रोटॉन्स एंड 10 न्यूट्रॉन्स. ठीक है, व्हाट इज द न्यूक्लियन नंबर ऑफ दिस एटम. ठीक है बेटा, न्यूक्लियन नंबर को और क्या कहते हैं हम बेटा? मास नंबर कहते हैं. और मास नंबर क्या होता है बेटा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है. P प्लस N इज एक्चुअली दी मास नंबर, और विच इज मोर कॉमनली नोन एज न्यूक्लियन नंबर. तो 8 और 10 को जब हम ऐड करेंगे बेटा, हमें ज्यादा ऑप्शंस में देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर गेटिंग द आंसर डायरेक्टली. द आंसर इज टी, because when we add 8 and 10, the answer is 18. This is the mass number or the nucleon number. It is not necessary कि बेटा हर MCQ के क्वेश्चन के लिए आप सारे ऑप्शंस को ट्रेस आउट करो, because sometimes the questions are that much easy, or sometimes the questions are giving you the answer directly in front of you, that you need not to waste your time looking onto the other options. But in a few cases,
As I told you, for the question number 4 and for even the later questions that we are going to do, एक मेथड होता है बेटा जिसको हम फॉलो करते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन में क्या होता है, चार ऑप्शंस में से हम अगर ये नहीं देख पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सबसे सही है, तो एटलीस्ट हम ये कोशिश कर सकते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन लीस्ट लाइकली है उसे रिमूव करें। तो उससे क्या होगा बेटा कि हम करेक्ट आंसर के नजदीक आना शुरू हो जाएंगे। दिस क्वेश्चन यू हैव टू लिसन केयरफुली अगेन, देन we'll be moving on to the next set of questions। अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। ठीक है बेटा, ये क्या कह रहे हैं, एक कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसमें क्या है, मोर न्यूक्लियॉन्स, दैट मींस इट हैज मोर मास, ठीक है, देन द नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ दिस वन। अच्छा, अब वो जो नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन्होंने दिखाया है बेटा, वो कौन सा दिखाया है, ये वाला। इसके अंदर आपका जो मास नंबर है वो क्या है बेटा, 12 है। ठीक है, और ये कह रहे हैं सवाल में कि जिस आइसोटोप की ये बात कर रहे हैं, विच इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, उसके अंदर जो मास है वो इस वाले से ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर इसका मास 12 है तो उसका मास 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है। बट एक चीज बेटा ऐसी होती है जो किसी भी एलिमेंट के लिए चेंज नहीं हो सकती है, जो उस एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है, उस एलिमेंट की पहचान होती है, दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर एंड व्हाट वी कॉल इट आल्सो प्रोटॉन नंबर। और जितने प्रोटॉन होते हैं जनरली एटम में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो आइसोटोप की डेफिनेशन को बस सिर्फ ये चीज आपके सामने एक्सप्लेन कर रही है कि आइसोटोप जो है बेटा, उसमें क्या चीज डिफरेंट हो सकती है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं। और जब ये बात कर रहा है कार्बन की, तो बेटा कार्बन का प्रोटॉन नंबर तो 6 है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन डी और ऑप्शन सी हम कर देंगे बड़ी इजीली कैंसल आउट, बिकॉज इन दोनों ऑप्शंस में जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 है, जबकि जब कार्बन का प्रोटॉन नंबर 6 है तो उसके कोई दूसरे रेडियो एक्टिव आइसोटोप का भी प्रोटॉन नंबर 6 ही होना चाहिए। So either the option is A or the option is B. Why? Because in A and B you can see the protons and the electrons are 6 and are equal obviously. What is different? Neutrons। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात तो तय है कि ए और बी एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, बट हमारे ऑप्शन का आंसर कौन सा है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन विच हैज मोर मास देन दिस वन। इसका मास कितना है, 12। तो अगर आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम करते हो तो 6 और 6 हो जाते हैं 12। इसका मतलब इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि जिस रेडियो एक्टिव आइसोटोप की ये बात कर रहा है यहां पे बेटा आपके सामने, उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप का मास इससे ज्यादा है। इसका मतलब न्यूट्रॉन्स उसमें 6 से ज्यादा होंगे। दैट मीन्स द ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बिकॉज इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 8 हैं, ज्यादा मास है इसका। तो वही चीज इससे आपने इसने आपसे पूछी हुई थी इन दिस टेबल के how many protons, neutrons, and electrons could be there in this radioactive isotope of carbon। radioactive isotope कौन सा था बेटा, ये वाला था, जिसका मास, जिसका न्यूक्लियॉन नंबर, मास नंबर इस वाले से ज्यादा था। इस वाले का मास हो गया 12। तो 8 और 6 को आप ऐड करते हो तो मास कितना आ जाएगा बेटा, 14, 14। तो इसका मतलब रेडियो एक्टिव वाले आइसोटोप का मास 14 है, इससे ज्यादा है। तो वो कौन सा वाला है वो आपसे पूछा गया है। द आंसर इज बी, बिकॉज उसका मास इससे ज्यादा होगा, क्योंकि इसके न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इससे ज्यादा है। दिस इज अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल्दो आई नो सम ऑफ यू might have understood it very easily or very early, but as I have told all of you, until and unless each and every student is getting each and everything in the class, I won't be moving further forward। तो अब ये हम लास्ट क्लास के एंड में भी डिस्कस कर रहे थे, ऑल्दो नाउ इट हैज बीन लाइक मोर डिटेल्ड। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अभी भी पूछ रहा हूँ और आगे भी पूछता रहूंगा हर क्वेश्चन के, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपसे बेटा, कि क्या ये आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। जेन्युइनली ऑनेस्टली प्लीज मुझे बताना है आप सबने। अबीरा, आयशा, ईमान, फातिमा, हमजा, हमना, मोहम्मद अहमद, मजीद, मरियम, जमील, मुस्फिरा,
उमर, सारा। ये एक स्क्रीन के ऊपर थंब ऐसे उड़ता हुआ आ रहा है, रिएक्शंस कुछ डिफरेंट हो गए हैं, जूम के ऑप्शंस कुछ डिफरेंट हो गए हैं हमारे पास। तो बड़े अच्छा सा ये देखने को मिला यहाँ पे। तो लेट मी सी। ओके हमजा, ये आपने अच्छा अभी ही मैसेज किया है जस्ट। ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, ऑल क्लियर। जस्ट वेट, आई जस्ट क्लियर दिस फॉर ऑल ऑफ यू हु आर नॉट अंडरस्टूड इट। कोई मसला नहीं है। हमजा, मरियम, एंड ऑल्सो देर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम आई थिंक उमर, और आई थिंक ही wants to say something, please. Umar, you can. ओके ओके, बाई मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो स्टिल देर आर अ फ्यू पीपल हु हैव दिस कंफ्यूजन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वील अगेन डू इट एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बेटा देखो सवाल में आपके सामने क्या कह रहे हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन हैज मोर मास या फिर मोर न्यूक्लियॉन। बेटा न्यूक्लियॉन नंबर किसे कहते हैं? मास नंबर को कहते हैं, ठीक है। तो मास नंबर ज्यादा होना, न्यूक्लियॉन नंबर ज्यादा होना एक ही बात है। ये बोल रहे हैं एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है, उसका मास एक नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो कार्बन का है उससे ज्यादा है। तो बेटा आप सिंपली ये देख लो ना कि ये जो नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है इसका मास कितना है बेटा? इसका मास 12 है। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 आपके सामने, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मास इसका आपको दिख रहा है, प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, और इसका मास है 12। इसका मतलब इस वाले में न्यूट्रॉन्स कितने हैं बेटा? ये आप अपने लिए लिख सकते हो ना कि 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 6 इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं इस वाले के अंदर, ठीक है, इस वाले के अंदर। जो दूसरा वाला है, जो रेडियो एक्टिव वाला है, उसके अंदर मास ज्यादा है। तो बेटा देखो आइसोटोप में प्रोटॉन्स भी उतने ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही रहते हैं, बट न्यूट्रॉन्स जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। अब ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही केस है जो कि ऑप्शन बी है, जिसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मास नंबर का डिफरेंस तभी आ सकता है जब न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा हो, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर कभी भी किसी एलिमेंट के लिए बेटा चेंज नहीं हो सकता है हमसा। तो दैट इज वाई द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी सेम, द मास ओनली इज बीइंग डिफर्ड if the number of neutrons are more or less in anyhow. सो यहां पर हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है बेटा वो 8 हैं। इसीलिए इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप का जो मास है बेटा वो इससे ज्यादा है, इसका मास 12 है, इसका मास इससे ज्यादा होगा। तो या तो वो 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 8 और 6 को हम ऐड करते हैं तो मास आ रहा है 14, और इसका मास कितना आ रहा था बेटा? इसका मास आ रहा था 12। तो इसका मास जो है 14 रेडियो एक्टिव वाला आइसोटोप का नॉन रेडियो एक्टिव वाले से ज्यादा है। और उन्होंने यही पूछा था रेडियो एक्टिव वाले के लिए, जो कि ये वाला है जिसका मास ज्यादा है, कि उसमें कितने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं बेटा। सो दिस इज योर आंसर देयर फॉर ऑप्शन बी। हमजा, मरियम, क्लियर है बेटा? ओके मरियम। ओके बेटा, सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर दिस द क्वेश्चन दैट वी कैन डू, क्योंकि इसमें कुछ वही वाली बात है जैसे मैंने कहा कि ठीक है बेटा, आ गया समझ में, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास अब आ जाता है इसके अंदर, जो प्योरली एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है जो कि आप लोग कर सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 को भी हमने डिस्कस किया था, बट अगेन वी विल बी डिस्कसिंग इट इन वेरी मच डिटेल। बेटा देखो ये सवाल तो वैसे इसका आंसर बहुत ही इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बेटा पढ़ा है, ठीक है। नेचुरली अकरिंग ब्रोमीन हैज अ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 80, ठीक है। एक सेकेंड, या हम ना बेटा आंसर, योर आंसर इज करेक्ट, बट आई हैव टू एक्सप्लेन देम। All, so all aren't of atomic structure. No, 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 not.
ऑल आर नॉट ऑफ दैट। बेसिकली दो तीन चैप्टर्स जब आप कर लोगे तो उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप वापसी रिविजिट कर सको ना, दैट इज लाइक दिस इज डिजाइंड इन अ वे। बिकॉज जो पास पेपर क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा कि दो तीन टॉपिक्स को मिक्स करके बनाते हैं, बट ड्यू टू द रीजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट भी उसमें मौजूद होता है, दैट इज वाई दिस इज प्लेस्ड ओवर हेयर इन दिस टॉपिकल पेपर सेक्शन ना। तो अब वो उसकी वजह से अब वो कुछ ऐसा मिक्स हुआ है जो आगे के चैप्टर्स का है, वो फिर हम नहीं एट द मोमेंट कर सकते हैं। तो at the moment, for this question, as I'm saying, naturally occurring bromine has a relative atomic mass of 80। इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास जो कि क्या होता है बेटा, होता है एवरेज मास। आपने ये सब मेरे साथ बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग्स भी मैंने आपको सेंड की हैं each and every time to just revise if you want to go through each and everything that we have done। So फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने पूरा एक एग्जाम्पल किया है जिसको मैं अभी शो भी कर दूंगा आपके सामने। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं बेटा कि एवरेज मास है उसका कितना 80 एंड कंसिस्ट एंटायरली ऑफ टू आइसोटोप्स, ठीक है ना, ऑफ टू आइसोटोप्स ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस 79 एंड 81। अच्छा, जैसे हमना ने हमें आंसर बताया है और वो बिल्कुल ठीक आंसर है, तो पहले तो हम इस आंसर की बात पे आ जाते हैं कि कैसे ये आंसर ठीक है। ऑप्शन ए, इसको हमने बेटा यहां पे डिस्कस किया हुआ है, इफ यू रिमेंबर व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द abundance, the percentage abundance, the isotopic abundance of any particular element। सो ओवर हेयर बेटा ब्रोमीन के बारे में हमने ये पढ़ा है, ये एग्जाम्पल पर्टिकुलरली हमने फॉलो की है, जिसमें यू कैन सी दैट बोथ आर 50-50%। मतलब कि दोनों इक्वल प्रोपोर्शंस में एक्चुअली अवेलेबल हैं बेटा। जब भी दो चीजें इक्वल प्रोपोर्शंस में अवेलेबल हो तो उसका एवरेज मास एग्जैक्टली आपका सेंट्रल वैल्यू आता है। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू दैट एक आइसोटोप है 79 मास वाला, एक आइसोटोप है 81 मास वाला, तो बीच में क्या है इसके एग्जैक्टली 80। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट दे बोथ आर इन इक्वल प्रोपोर्शंस, बराबर अमाउंट में मौजूद है, 50-50% हमारे पास ये दोनों मौजूद है। हाउ टू डिटरमाइन अ सब्सटेंस इज रिएक्टिव और नॉट, आई विल बी डिस्कसिंग दिस इन द नेक्स्ट वंस। हम्म हम्म। ठीक है बेटा, तो पहले तो हम इस बात पे आ जाते हैं मजीद के इस क्वेश्चन में हमें आंसर तो ऑलरेडी मिल चुका है, बट या एज यू आर सेइंग, एज यू आर आस्किंग, समटाइम्स that there are other options that we have to look for। Even if you're getting the answer, you must know that why the other options are not the correct answers। तो बेटा आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। थ्योरी जो है ना, थ्योरी, अभी हम थ्योरी के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। बट आपको ये बात समझनी है, थ्योरी में ना मैं आपको पर्सनली बताऊं, अगर मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस से, थ्योरी इज कंपैरेटिवली इजी और डिफरेंट वी कैन से। क्योंकि थ्योरी में क्या है ना, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसका डायरेक्ट आंसर है। यू आर गेटिंग द मार्क और यू आर नॉट गेटिंग द मार्क, मोस्टली यू आर गेटिंग द मार्क इफ यू डायरेक्टली नो द कॉन्सेप्ट। बट इन एमसीक्यूज यू आर गिवन ऑप्शंस, देयरफॉर आप थोड़ा सा वहां पर भटक सकते हो उन ऑप्शंस की वजह से। आपको लग सकता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको समझना है सवाल में क्या पूछा जा रहा है। मजीद, आपको मैं ये बताऊं बेटा, आपको और सबको ये बताना चाहूंगा, क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना बेटा, वो ये नहीं पूछ रहा है कि ब्रोमीन के अंदर जो है आइसोटोप होते हैं नहीं होते हैं, या सिर्फ ए ऑप्शन से मुतलिक हमें डिस्कशन करना है। वो ये बोल रहा है नेचुरली अकरिंग ब्रोमीन हैज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 80 एंड कंसिस्ट एंटायरली ऑफ टू आइसोटोप्स ऑफ एटॉमिक मासेस 79 एंड 81। यहां तक की बात हो गई। अब सवाल क्या है बेटा, देखो ये होता है स्टेटमेंट। जब भी आप थ्योरी क्वेश्चंस देखते हो, एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हो, आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले आती है एग्जामिनर स्टेटमेंट और उसके बाद आता है एग्जामिनर क्वेश्चन। एग्जामिनर स्टेटमेंट वो है जो आप यहाँ एड के साथ लिखा हुआ देख रहे हो। उसके बाद जो एक एक स्टेटमेंट लिखी हुई है विदाउट एनी नंबर अलोंग विद इट, एक सिंगल स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो आपके लिए मेन चीज है। कैसे? आप देखो क्या पूछ रहा है, वॉट कैन बी डिड्यूस्ड अबाउट नेचुरली अकरिंग ब्रोमीन ब्रोमीन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन ओनली। बेटा सवाल को समझना है, सवाल को इस तरह से समझना है कि अब मैं आपसे ये कहता हूं
ठीक है, अब आप ये समझना इस बात को। मैं आपसे कहता हूं कि आज मैंने ना पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, ठीक है, इस बात को समझना। तो आप क्या इस बात को सुन के ये जज कर सकते हो कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है? कोई आंसर दे सकता है इस बात का, यस या नो? नो। आई एम गेटिंग आंसर इज नो, एंड ऑब्वियसली आंसर इज नो, because from the information I have provided, the only information I have provided, you cannot deduce that। आप कोई सवाल में क्या पूछा जा रहा है, एक आपको स्टेटमेंट दे दी है, उसके बाद यू आर गेटिंग द क्वेश्चन, देन यू हैव द ऑप्शंस एंड देन यू हैव टू चूज द राइट आंसर। सो व्हाट इज देयर इन दिस क्वेश्चन टू ऑफर यू इज दैट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए क्या आप बता सकते हो इन चार ऑप्शन में से? जैसे कि मैंने आपसे कहा मैंने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया है, तो इससे आपको क्या पता चल सकता है कि भाई मुझे भूख लग रही हो सकती है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि मुझे शायद खाना पसंद नहीं आया हो इससे पहले जब मैंने किसी एक मील को खाया हो, या मेरे पास टाइम नहीं हो खाना खाने का। ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आप डिराइव कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। बट कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन जो नॉन रेलेवेंट है इस बात से, वो आप नहीं बता सकते ना उस इंफॉर्मेशन से जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। मैं आपको अपना कोई लाइफ का किस्सा बताता हूँ, या फिर मैं लोगों को किस तरीके से ट्रीट करता हूँ, या फिर मैं लोगों से किस तरीके से बात करता हूँ, नेचर मेरा कैसा है, उससे थोड़ा सा आप जज कर सकते हो पर्सनालिटी को, जो कि फिर भी हमें करना नहीं चाहिए। बट एक बात है कि फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन यू कैन फिर भी डिड्यूस दैट। बट जो मैं इंफॉर्मेशन आपको अभी बता रहा हूं मेरे बारे में, उससे तो आप ये नहीं पता लगा सकते हो। तो एट द सेम टाइम ये जो चीज यहां पर आपको बताई जा रही है ना, वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ उसको जानते हुए आप ब्रोमीन के बारे में क्या बता सकते हो। नाउ यू कैन गो ऑन टू द ऑप्शंस। सिर्फ ये बात जो उसने बताई है उसको जानते हुए क्या मैं पता लगा सकता हूं कि ब्रोमीन के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से? अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दिस बेटा, कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो चीज है जो एक आगे चैप्टर आता है रिडॉक्स रिएक्शंस, उसमें हम पढ़ते हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि क्वेश्चंस जब डिजाइन होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के या कोई भी चैप्टर के पास पेपर क्वेश्चंस, उसमें जब पेपर आता है तो वो सब चीज पढ़ने के बाद आता है ना ईयरली एग्जाम आपका। तो उसके टॉपिकल क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस में ये भी होता है कि प्योरली एटॉमिक है, और कुछ में वो स्लाइटली कोई चीज होती है जो नॉन टॉपिक होती है। हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा किसे कहते हैं? हम चार्जेस को कहते हैं। तो ब्रोमीन के दो डिफरेंट चार्जेस होते हैं या नहीं होते हैं, ये ऑप्शन है बी। बट ये गलत इसलिए है क्योंकि मुझे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, मुझे इससे ये नहीं पता चल रहा है कि ब्रोमीन के पास क्या दो अलग अलग टाइप के चार्जेस होते हैं। वैसे मुझे पता है कि ब्रोमीन होता है वन नेगेटिव, ठीक है, तो वो ग्रुप 7 में होता है, ठीक है, वन नेगेटिव होता है। ये एक चीज है जो कि हम पढ़ते हैं लेटर ऑन बॉन्डिंग में। बट अगेन इस इंफॉर्मेशन से मुझे ऐसी कोई बात नहीं पता चल रही है, तो ये ऑप्शन यहां से हो जाता है रिमूव। ब्रोमीन आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब एक और चीज की बात करते हैं बेटा, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं ना, फ्रॉम एनी क्वेश्चन आई कैन ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट। जहां पर प्रॉब्लम आती है आगे, जब आप पेपर्स दोगे अपने कैम्ब्रिज के एग्जाम्स दोगे, तब आपको जो जो इश्यूज होंगे ना वो सारे मैं आपको एड्रेस करूंगा हर क्वेश्चन के थ्रू, अलग अलग पर्सपेक्टिव से। क्या बताना चाह रहा हूं बेटा मैं आपको, जो चार ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं ना, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट आईजीसीएसईज ओ लेवल्स, कंपैरेटिवली द एमसीक्यूज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर इजियर देन द एडवांस लेवल्स, देन द ए लेवल्स, ठीक है, वेदर इट इज एट एक्सेल और कैम्ब्रिज वट एवर। बट जो एमसीक्यूज आगे के लेवल पे होते हैं और डिफिकल्ट होते हैं। यहां पर क्या होता है, कंपैरेटिवली डिफिकल्टी लेवल इज लो। तो होता क्या है बेटा, चार ऑप्शन के नेचर बता रहा हूं मैं आपको क्या होते हैं। चार ऑप्शन में से एक तो होता है सही ऑप्शन, ठीक है, तीन होते हैं गलत जवाब। लेकिन वो तीन जवाब भी गलत कैसे होते हैं, उनका भी डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट है। एक जवाब ऐसा होगा जो बिल्कुल ही फालतू बात लिखी हुई होगी, गलत बात लिखी हुई होगी, जो बात ही सही नहीं है, ठीक है। एक ऐसा होगा जो बात सही है लेकिन सवाल का जवाब नहीं है। और एक ऐसा होगा जो कि सवाल का जवाब हो सकता है, सवाल का जवाब हो सकता है किसी तरीके से, बट वो बात सही नहीं है। और एक जो होगा आपका ऑप्शन, वो होगा जिसके अंदर बात भी सही लिखी हुई होगी और वो आपके सवाल का जवाब भी होगा। अगेन आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर। मैं आपसे फॉर एग्जांपल मैं सुबह कॉफी पी के गया हूं एक जगह पे, ठीक है, और मुझे वहां जाने पे मुझसे पूछा जाता है आपका नाम क्या है, मुझसे पूछते हैं आपका नाम क्या है। तो मैं
उन्हें जवाब में कहता हूं कि मैं कॉफी पी के आया हूं, तो वो आगे से हंसेंगे या ओवर रिएक्ट करेंगे तो वो तो एक अलग बात है, नेचर वाइज जो भी करते हैं। बट मैंने जो जवाब दिया है, क्या वो जवाब झूठ है? नहीं, झूठ तो मैं नहीं बोल रहा हूं, कॉफी तो मैं पी के आया हूं। बट वो सवाल का जवाब नहीं है। एक ऑप्शन मैंने दे दिया, कॉफी पी के आया हूं, ये एक हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये ऑप्शन हो गया कट, बिकॉज ये सच है बट क्वेश्चन का आंसर नहीं है। दूसरा, मैं कहता हूं कि मेरी बियर्ड नहीं है, उनसे मैं कहता हूं कि मेरी बियर्ड नहीं है, तो ये तो झूठ हो गया, बिल्कुल गलत, टोटल लाई। तो एक ऑप्शन ऐसा है जो टोटल लाई है, इसको बिल्कुल देखना नहीं है आपको, जो लीस्ट लाइकली ऑप्शन होता है। दूसरा क्या था, मैं कॉफी पी के आया हूं, जो कि मैं असल में पी के आया हूं इन एन एग्जाम्पल विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वहां पर वो क्या बात हुई कि बात सही है लेकिन सवाल का जवाब नहीं है, तो वो भी क्रॉस हो गया। ठीक है, और तीसरी बात ये हो सकती थी कि मैं जो कह रहा हूं वो बात उसके सवाल का जवाब हो सकती थी, बट वो सही नहीं है। मतलब मैंने उनसे कहा मेरा नाम जाफर है, तो ये उनके सवाल का जवाब तो है कि उन्होंने पूछा था नाम, और मैंने बताया नाम, लेकिन वो नाम मैंने बता दिया गलत। तो ये तीन ऑप्शंस हो गए गलत। मेरा नाम जाफर है, आंसर है सवाल का, बट आंसर गलत है, तो ये एक रिमूव हो गया। दूसरा, मैंने कहा मैं कॉफी पी के आया हूं, जो कि मैं एक्चुअली में पी के आया हूं एग्जाम्पल में हमारे, तो वो बात सही बताई है मैंने, बट वो सवाल से रेलेवेंट नहीं है, सवाल का जवाब नहीं है, रिमूव हो गया। तीसरा, मैंने कहा मेरी बियर्ड नहीं है, जो कि झूठ है, बिल्कुल लीस्ट लाइकली, तो ये भी रिमूव हो गया। और चौथा है, मेरा नाम करीम है, तो ये मेरा सवाल का जवाब भी हो गया और ये सच भी हो गया, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इन दीज फोर ऑप्शंस, ब्रोमीन इज रेडियो एक्टिव। इस इंफॉर्मेशन से मुझे ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ब्रोमीन एक अदद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा या नहीं होगा। अगर ऐसा कहते हैं कि ब्रोमीन के अंदर से जो है एनर्जी एमिट हो रही है, उसके अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मैं शायद सोच सकता था कि हाँ ये रेडियो एक्टिव होगा, उस इंफॉर्मेशन से मुझे पता चल सकता है। बट यहां पे मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है इस गिवन इंफॉर्मेशन से कि ब्रोमीन रेडियो एक्टिव है या नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी जो है ना बेटा, सी ऑप्शन वो लीस्ट लाइकली वाला है, जो मैंने बताया था ना आपको कि कौन सा वाला केस था कि मेरी बियर्ड नहीं है, मतलब झूठ है बिल्कुल। तो सी ऑप्शन क्या है, ब्रोमीन आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन को ही फुलफिल नहीं कर रहा है। आइसोटोप्स की डेफिनेशंस में क्या होता है कि आपके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। लीस्ट लाइकली, लीस्ट, डबल क्रॉस, डबल क्रॉस, ट्रिपल लगा देते हैं। क्यों? लीस्ट लाइकली ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले जब एक ऑप्शन को क्रॉस आउट करते हो, आप तीन चार ऑप्शन देख रहे हो, डेफिनेशन अच्छे से पता है आपको आइसोटोप्स की। सी को आप देख रहे हो, ये सी में क्या बोल रहा है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये तो बात ही गलत हो गई, आपने कर दिया उसको क्रॉस, बिल्कुल ब्लैक, गंदा, बिल्कुल हटा दो। तो सी बिल्कुल रिमूव हो गया। उससे क्या हुआ कि आपके ऑप्शन में जहां आपको चार ऑप्शंस मिले हुए थे, तो पहले आपके हर सही आंसर होने की प्रोबेबिलिटी थी 1/4, दैट मीन्स 25% चांसेस। अब आपकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई है, दैट मीन्स 33.33% चांस ऑफ गेटिंग द राइट आंसर। फिर आपने देखा, इस इंफॉर्मेशन से मुझे तो ये नहीं पता चल रहा है कि ब्रोमीन रेडियो एक्टिव है कि नहीं है, तो वो भी हमने कट कर दिया, 50% प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी। और फिर बी को भी अगर मैं देख रहा हूं, तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में कुछ पता चल रहा है फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। ऑल्दो अगर आपको बी के बारे में नहीं भी पता है, ए के बारे में तो पता है ना, क्योंकि ए के बारे में तो मैंने आपको वैसे ही पढ़ाया है ब्रोमीन के बारे में। और ए के बारे में आप वैसे भी पता लगा सकते हो कि बेटा 79 और 81 का एवरेज आता है 80। और जब दो आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के इक्वल प्रोपोर्शंस में होते हैं, तो बिल्कुल सेंट्रल एवरेज वैल्यू का आंसर देते हैं, 79 और 81 का एवरेज 80 आ रहा है। सो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दिस वॉज अ डिटेल्ड, वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जस्ट फॉर द केस कि आपको आंसर देना समझ में आए, नॉट फॉर दिस क्वेश्चन ओनली, फॉर एवरी क्वेश्चन द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको आंसर किस तरीके से देना है, आपको करेक्ट आंसर की तरफ किस तरीके से पहुंचना है, वो हमारा मेन टारगेट है। तो प्लीज मुझे बता दो आफ्टर दिस होल लॉट ऑफ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि आर यू ऑल गेटिंग दिस और नॉट। अबीरा, आयशा, ईमान, फातिमा, हमजा, हमना, अहमद, मरियम,
जमील, सॉरी, मोहम्मद जमील, मुस्फिरा, उमर, सारा। क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बट इट्स नॉट दैट कि जरूरी है ये, बट आई बिलीव हो जाना चाहिए। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिटेल्स दैट आई एम गिविंग यू ना। इतना डिटेल में ये क्लियर हो जाना चाहिए वैसे, बट इवन इफ देयर इज एन इशू यू कैन आस्क मी, एवरी वन ऑफ यू। ठीक है बेटा, अभी भी मुझे आंसर्स नहीं मिले हैं बेटा सबके। आई वांट ऑल ऑफ यू टू जस्ट, एटलीस्ट इफ इट इज टेकिंग टाइम टू राइट क्लियर और गेटिंग एवरीथिंग समथिंग, जस्ट मेक अ थंब। ठीक है, थंब बना दो भाई कि हो गया, ठीक है, आई एम गेटिंग इट। इफ यू नॉट गेटिंग इट देन आस्क। मुस्फिरा, उमर, सारा, हमना, हमजा, ईमान, आयशा। चैट में लिख रहे हैं लोग, मुझे शायद वो सही से क्लियरली दिख नहीं रहा है। ये टाइम ओके। अबीरा इज ऑल्सो सेड, सारा, ईमान, आयशा, फातिमा, मुन्ना, मरियम। ओके ओके ओके, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू हैव सेड, बट इवन इफ एनीवन हैज एन इशू दे कैन डिस्कस। नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी कैन डू। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये है प्योरली एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आप लोग बताओगे बेटा मुझे, ये लिटरली इसमें कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों ने मुझे बताना, जो आप लोग कर सकते हो वो तो आई बी लीविंग अप टू यू ना, कि हम क्लास में भी करें तो आप कर लो, और फिर इन द होमवर्क ऑल्सो लेटर ऑन। ठीक है बेटा, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10, एन एटम एक्स कंटेन्स 16 प्रोटॉन्स। ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट एक्स इज करेक्ट? इट कैनॉट फॉर्म एन आयन, इट कंटेन्स 6 electrons in the outer shell, it contains 6 neutrons, it has a relative atomic mass of 16. Hamna, just wait. I know you might be having the right answer, so I want someone else to answer, or you can just answer me in personal chat. लो, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि वेट करो। फातिमा, आपने आंसर बता दिया। अच्छा, सभी बता रहे, खैर अब तो फिर ठीक है, फिर ठीक है। ओके, बी इज द करेक्ट, ठीक है ठीक है, इट्स फाइन। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि आप में से काफी लोग कह रहे हैं, बट स्टिल एज आई हैव सेड, जब तक सब लोग नहीं कह देते, सब लोग इसके ऊपर यूनाइटेड नहीं होते हैं कि यू ऑल आर गेटिंग इट, देन ऑब्वियसली वी कैन नॉट एंड द डिस्कशन ओवर हेयर। सिंपली बात करते हैं जल्दी से। यस हमना, योर आंसर इज करेक्ट। सो एन एटम एक्स कंटेन 16 प्रोटॉन्स ना, सारी बात कर लेते हैं जल्दी से ना। 16 प्रोटॉन है इसके पास, और एटम है बेटा, तो 16 प्रोटॉन्स हैं, तो और क्या चीज है जो 16 होगी इसके पास? इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि एटम के अंदर हमेशा क्या चीज प्रोटॉन्स के बराबर होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। 16 प्रोटॉन्स हैं तो 16 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उससे मुझे क्या पता चल रहा है, अगर 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही मुझे बदल सकती है। पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8, और तीसरे में 6 आएंगे, जिससे कि मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। बट अगेन एज आई सेड, इवन इफ यू नो द करेक्ट आंसर एंड इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जस्ट ट्राई टू एलिमिनेट बाकी सब, कि आपको हो जाए कि हाँ बस ये नहीं है, ये वाले ऑप्शंस ना। इट कैनॉट फॉर्म एन आयन, ये इंफॉर्मेशन अगेन, ये इंफॉर्मेशन इस बात को बताने के लिए इनफ नहीं है, और ये कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वैसे भी नहीं है। बिकॉज वैसे तो हर एलिमेंट ट्राई कर सकता है आयन बनाने की, ऑल्दो इफ वी आर ऑब्वियसली नॉट नोबल गैसेज, वो कि वो उस तरह से रेगुलरली बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बट इफ यू कैन से 16 प्रोटॉन्स, मतलब एटम है वो, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स भी है उसके अंदर। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये है कि ये 18 कर सकता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना आउटर शेल कंप्लीट कर सकता है, तो आयन तो बन सकता है। तो यहां ये कह रहे हैं आयन नहीं बना सकता, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। ठीक है, सी ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। बी ऑब्वियसली आप सबने कह दिया करेक्ट है। सी, इट कंटेन 6 न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ऐसा। ऑल्दो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बट अगेन इन द एग्जाम यू आर प्रोवाइडेड विद द पीरियोडिक टेबल, पीछे जाकर चेक कर सकते हो। हालांकि ये सवाल बिल्कुल बेबुनियाद है, नहीं हो सकता ऐसा, इसका रीजन कुछ और भी बताऊंगा मैं आपको। 16 प्रोटॉन वाले को जाकर आप चेक करोगे पीरियोडिक टेबल में, ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है? ऐसा एलिमेंट होता है सल्फर।
सल्फर की आइडेंटिटी, प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होगा किसी का भी, वो 16 ही रहेगा सल्फर के लिए, अगर जो भी एलिमेंट है उसके लिए वही रहेगा, उसकी आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है। तो सल्फर के अंदर जो, वैसे आप अगर कॉमनली बात करते हो तो 32 उसका मास नंबर होता है, तो 16 उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं बेटा, 6 नहीं होते हैं। ठीक है, और एक और बात जो बताऊंगा मैं आपको बेटा, हमेशा एक्सेप्ट फॉर द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन के केस में सिर्फ ऐसा है कि उसमें न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं हैं, जबकि उसके बाद आप जितने भी एलिमेंट्स देखोगे उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या तो प्रोटॉन्स के बराबर होंगे या तो प्रोटॉन से ज्यादा होंगे। तो इसमें वही बात है, अगर 16 प्रोटॉन्स हैं तो कोई चांस नहीं है कि 6 न्यूट्रॉन्स होंगे। एंड डी, इट हैज अ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 16, नहीं बेटा 16 प्रोटॉन्स हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है, जिसे मास नंबर भी कहते हैं, जिसे एटॉमिक मास भी कहते हैं, जिसे न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं बेटा, वो होता है आपका सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइंड। तो 16 तो सिर्फ इसने बता दिए हैं प्रोटॉन्स हैं हमारे पास, तो कुछ तो मास होगा ना न्यूट्रॉन्स का, जो कि मैंने बताया आपको 16 है उसका भी। तो 32 इसका मास है, तो जितने प्रोटॉन है उतना तो एटॉमिक मास वैसे भी नहीं हो सकता। तो ये भी गलत हो गया, तो ऑटोमेटिकली कुछ भी करो, वी आर लेफ्ट विद ओनली बी। आपको अगर नहीं भी पता है ना कि बी आंसर सही है, फिर भी यू आर लेफ्ट विद बी, डायरेक्टली यू कैन चूज इट। बट अगर हम डिस्कस भी करेंगे कि क्यों हमें पता है, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया, सबसे आउटर शेल, ये सबसे इनर शेल है, ये मिडल शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है। तो आउटर शेल जिसे कहते हैं, जिसे आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, जिसे वैलेंस शेल भी कहते हैं हम, उसके अंदर इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज वाई बी इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन इज गेटिंग इट और नॉट? प्लीज टेल मी। ये जबरदस्त फीचर निकाल रहा है, थंब ऐसे उड़ते हुए जा रहे हैं, ओहो तो सारे थम्स आ गए। ये अच्छा ऑप्शन है ना, आप लोगों ने कर लिया कि जल्दी से आप लोग थंब बना के भेज रहे हो ना, क्विकली क्विकली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जरा, और फिर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और करके हम फिर जल्दी से आ जाते हैं टूवर्ड्स दी थ्योरी क्वेश्चंस। अच्छा, अगेन ये क्वेश्चन भी मुझे पता है जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा बॉन्डिंग का कर से, बट हमने नहीं उस चैप्टर को पढ़ा है, सो वी कैन नॉट प्रोसीड विद दैट व्हिच इज हैविंग अ डिस्कशन ऑफ द चार्जेस। सो वील बी डायरेक्टली मूविंग ऑन टू द questions which are purely discussing at the moment about the atomic structure. Even question number 12 भी आप कर सकते हो, but again it describes something about chloride ions, that means it is regarding bonding. अगेन वी वोंट बी डूइंग दैट। हाँ, क्वेश्चन 13 हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूंगा आपको, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अ रिसर्चर नोटिसेस दैट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर रिलीजिंग एनर्जी। Why are the atoms releasing energy? The atoms are absorbing light, नहीं। ठीक है, so these are from the notes. No, not from the notes, beta. From the chapter, na. The chapter is atomic structure, the very first one, na. So we probably are trying to only do the chapter, the MCQs and the theory questions, which are purely based on the atomic structure, na. ठीक है, the atoms are absorbing light. The atoms are evaporating. The atoms react with argon in there. The atoms are radioactive. इसका simple answer है बेटा C. You need not to look onto any other thing. जो चीज अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करती है, रेडिएशंस रिलीज करती है बेटा, दैट इज रेडियो एक्टिव। एटम्स आर्गन से नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, एयर में आर्गन अनरिएक्टिव होती है बेटा। आर्गन एक ग्रुप 8 का एलिमेंट है, दैट इज अ नोबल गैस जो कि रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, एटम्स आर एवेपोरेटिंग वाली बात से एनर्जी का कोई ताल्लुक नहीं आ रहा है, अगर एटम एवेपोरेट कर रहा है तो। ठीक है, अच्छा, क्योंकि एटम अगर इवेपोरेट कर रहा है तो सिस्टम के अंदर एनर्जी जो है वो लूज हो रही होती है उस केस में। ठीक है, और उसमें हमारे पास एटम्स और एब्जॉर्बिंग लाइट, तो उसमें एब्जॉर्ब करने में तो एनर्जी वो गेन कर रहा है, एक तरीके से लाइट की फॉर्म में एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी गेन कर रहा है। एटम्स आर रेडियो एक्टिव विच आर रिलीजिंग एनर्जी, तो इसलिए इसका डायरेक्टली आंसर है सी। लेट लुक एट अ फ्यू चैट्स। आई वाज आस्किंग अबाउट द क्वेश्चंस आर फ्रॉम नोट्स और no, 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 but these are past paper questions of the Cambridge for both the O level and the IGCSE. Yes, yes, Fatma, yes, you are right. We can say that.
ठीक है बेटा। क्वेश्चन 13 के बाद हाँ, ये क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन वैसे तो मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को करवाऊं नहीं, बट फिर भी वी कैन डिस्कस। मैं चाह रहा आप खुद इसे ट्राई करो, बट व्हाट वी कैन से ओवर हेयर, यू हैव टू लुक वेरी केयरफुली ऑन टू दिस। विच ग्राफ शोज द नंबर, देखो बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ उस केयरफुली सुनो और एक्सप्लेनेशन समझोगे, बहुत इजीली आ जाएगा। नहीं आता है तो वैसे भी बताना है मुझे। So, which graph shows the number of electrons in the outer shell of an atom plotted against the proton atomic number for the first 10 elements in the periodic table? अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम गंदगी नहीं कर रहे। गंदगी करने का मतलब क्या, भर दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पेन यूज करो, कुछ भी यूज करो, भर दो इसको, आंसर बताओ, यहां लिखना शुरू कर दो चीजें। ठीक है। प्लॉट क्या हुआ बेटा, यहां पे वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, और एक्स एक्सिस पे क्या है, प्रोटॉन नंबर। ठीक है, चारों तरफ, चारों ग्राफ्स में यही हो रहा है, यही होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जरा ये डिस्कस करते हैं, इस बात को डिस्कस करते हैं कि एक्स एक्सिस वैसे कौन सा होता है बेटा। ये एक्स एक्सिस होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसे ऐसे ही कहा जाता है, ये जो एक्सिस होता है। ठीक है। लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट्स वी कैन से, एज वी आर लुकिंग ऑन टू द पेज, वी कैन से लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट्स आर एक्स मूवमेंट्स। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स, एंड द वर्टिकल मूवमेंट्स आर बेसिकली मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, दैट इज एक्चुअली द वाई एक्सिस, द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग या काफी लोग ना बेटा इसका आंसर ए बता देते हैं, थोड़ा सा फंस जाते हैं, ए बता देते हैं। हम ना, आई विल डिस्कस दिस विद यू इन दिस लाइक क्वेश्चन, जो कि आपका आंसर है वो क्या सही है, क्या या नहीं है, और क्यों है अगर है तो। सो इन ए, इन बी, इन सी एंड डी, व्हाट यू कैन सी। अच्छा, ज्यादातर लोग इसको, मुझे पता है कि बी और डी कैंसिल आउट कर देते हैं इसमें से। द रीजन इज कि ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, प्रोटॉन नंबर के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। तो इस हिसाब से तो यहाँ गिरता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है, या कुछ ऐसा गैप नहीं आ रहा है बीच में, तो डी और बी रिमूव होते हुए नजर आ रहे हैं। ए और सी में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यू हैव टू लुक क्लोजली। यस फातिमा, यू आर वेरी क्लोज, आई टेल यू। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोले हैं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर शेल। प्रोटॉन नंबर पहले से 10वें तक, यानी कि पहला प्रोटॉन नंबर किसका होता है बेटा, हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन के पास तो शेल ही एक होता है, तो आउटर शेल में मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ। तो देखते हैं, ये देखो, ये टू है ना, तो ये टू पे ग्राफ बेसिकली टू बना रहा है। और अगर यहां समझो फॉर एग्जांपल वन है, तो वन पे ये समझो कि वन बना रहा है। ठीक है। तो हाइड्रोजन के केस में एक ही होता है, तो आउटर शेल वाला भी एक ही हुआ, और एक ही प्रोटॉन होता है उसका भी। ठीक है ना, उसका भी ऐसे एक ही प्रोटॉन होता है। ये लगा दो तो ठीक है, यहां तक ठीक है। दो होते हैं हीलियम के पास बेटा, सेकेंड एलिमेंट पीरियोडिक टेबल आपके पास गिवन होता है, और दो ही प्रोटॉन्स होते हैं हीलियम के पास, और आउटर शेल उसका एक ही शेल है ना, तो उसके पास दो ही है। तो ये दो दो भी ठीक है। और यही सेम आपको सी में भी नजर आएगा। देखो, वन पे इज दिस वन, एंड टू पे दिस इज टू। ऐसे लेते हैं, टू पे दिस इज टू। लेकिन जैसे ही हम आ गए बेटा प्रोटॉन नंबर थ्री पे, यहां प्रोटॉन नंबर थ्री है, तो थ्री पे वापस से क्या हो गया बेटा, वन। क्यों? देखते हैं बेटा, थर्ड एलिमेंट को देखते हैं ना। थर्ड एलिमेंट कौन सा है, लिथियम है। लिथियम क्या होता है बेटा, 7 और 3 आपके पास पीरियोडिक टेबल अवेलेबल होगा, कोई मसला नहीं है। पहले शेल में आ गए दो, दूसरे में आ गए एक। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल बेटा। आउटर शेल में लिथियम के कितने हो गए, वापस से वन हो गए, जबकि लिथियम का प्रोटॉन नंबर कितना है, थ्री है। तो जिसका प्रोटॉन नंबर थ्री है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में, वन है। दैट मीन्स देर इज ओनली वन स्लाइट डिप गोइंग टू बी एक्सपीरियंस्ड ओवर हेयर व्हेन वी आर मूविंग टू थर्ड। ऑल्दो फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगे वापस से। आप देखो, फोर पे जब आप जाते हो तो चौथा कौन सा होता है, बेरिलियम। बेरिलियम के आउटर शेल में होते हैं दो। ठीक है, और कितने प्रोटॉन नंबर है बेरिलियम का, चार। तो अब तो ये बढ़ता ही रहेगा, लेकिन ये डिप जरूरी है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। लिथियम के पास टोटल दो शेल्स हैं बेटा, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन है। यहां पर ये प्लॉट नहीं किया जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये प्लॉट किया जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में कितने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में कितने हैं बेटा, ये बताना है ऑन द वाई एक्सिस अगेंस्ट द प्रोटॉन नंबर ऑन द एक्स एक्सिस। तो लिथियम का प्रोटॉन नंबर कितना है बेटा, 3 है, तो ये हो गया 3। ठीक है। और थ्री वाले पे आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, सिर्फ 1। देखो, ये पहले 1 1 पे था, ये बराबर था 1 1 पे, ठीक है। फिर ये 2 2 पे आया, बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब ये वापस 3 पे गया तो फिर से 1 पे आ गया बेटा। तो दिस डिप हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड एंड देर इज नो डिप ओवर हेयर। यहां जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है ना, बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। तो अगर यहां लिखा होता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ, तो ये ग्राफ सही है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन पे दो प्रोटॉन, तीन इलेक्ट्रॉन पे तीन प्रोटॉन, चार इलेक्ट्रॉन पे चार प्रोटॉन। और आई 70% बच्चे ये चीज क्विकली देख के इस आंसर को टिक कर लेते हैं। तकरीबन बच्चे आसान अप्रोच पे जाके इसको टिक कर देते हैं, जो कि गलत जवाब है। दिस इज रॉन्ग। और जब प्रोटॉन नंबर बढ़ रहे हैं आगे जाके भी, तभी भी इलेक्ट्रॉन नंबर तो बढ़ेंगे। तो गिरने का तो सवाल ही नहीं हो रहा है। ठीक है ना। कि जिसके पास एक प्रोटॉन है उसके आउटर शेल में 10 इलेक्ट्रॉन से शुरू हो रही है कहानी, ये तो बिल्कुल ही फजूल हो गया। और ये तो कोई डिप आ रहा है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो ऑप्शन करेक्ट वन इज ऑप्शन सी। ये मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने को भी तैयार हूं, अगर अगर इफ यू आर हैविंग एनी इश्यूज इन दिस वन। ईमान, फातिमा, हमजा, हमना, मरियम, मोहम्मद जमील, मोहम्मद अहमद, मुस्फिरा, उमर, सारा, आयशा, अबीरा, एनी वन, एनी इशू कुछ भी हो, प्लीज प्लीज पूछ लो बेटा। क्या फीचर निकाला है जूम ने, मैं तो मैं देखे ही जा रहा हूँ, थम्स हवा में उड़ रहे हैं, क्या बात है। ओके मुस्फिरा, आर यू गेटिंग इट? ओके अबीरा, अबीरा हैज आस्क्ड, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। आई टेल यू कोई मसला नहीं है, डन हो गया। बेटा देखो, यहां पर अगर लिखा हुआ होता ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा जिसके पास एक प्रोटॉन होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, दो प्रोटॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी दो होते हैं, तीन प्रोटॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी तीन होते हैं। ऐसे ही होता है ना एटम के लिए, एटम के लिए। ठीक है, आउटर शेल ऑफ एन एटम, बेटा एटम लिखा होगा लाजमी, नहीं लिखा होगा तो सवाल ही गलत हो जाएगा एग्जामिनर का। तो एटम के लिए किसी भी एलिमेंट के अंदर, एटम्स के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं अबीरा, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक प्रोटॉन पे एक इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन पे दो इलेक्ट्रॉन्स, तीन प्रोटॉन्स पे तीन इलेक्ट्रॉन्स, चार प्रोटॉन्स पे चार इलेक्ट्रॉन्स। तो उस हिसाब से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं, तो ये जो ए है ना वैसे सही है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट द प्रोटॉन्स। देखो ना, एक पे एक, दो पे दो, तीन पे तीन, देखो तीन पे तीन भी आ रहा है, तीन पे तीन, तो सभी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी बट फिर भी, चार पे चार, पांच पे पांच, छः पे छः, ऐसे पांच पे पांच, ऐसे बीच में। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहा है ना। बट सवाल में क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखा है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल। आप देखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हाइड्रोजन के लिए देखते हैं ना। हाइड्रोजन होता है बेटा 1 1, इसके पास प्रोटॉन कितने होते हैं, एक प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है, तो आउटर शेल क्या बचा, खुद ही आउटर शेल हो गया ना वो। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, सही है। ठीक है, हीलियम के लिए देखते हैं बेटा, हीलियम दूसरा नंबर हो गया। दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आउटर शेल भी दो ही हुआ है ना, मतलब दो ही इलेक्ट्रॉन्स हुए आउटर शेल में, कोई एक ही शेल है इसके पास। और प्रोटॉन भी दो हो गए। तो फर्स्ट और सेकंड तक तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम लिथियम पे आ जाते हैं बेटा, लिथियम है जो चेंज करवा रहा है। because they are not talking about the electrons, they are talking about the electrons in the outer shell, outer most shell, सबसे बाहर वाला शेल। तो लिथियम के पास बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तीन हैं। ठीक है।
और कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, 2,1। तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन यहां पर तो बेटा वन था, प्रोटॉन वन था, इलेक्ट्रॉन दो थे, दो थे, क्योंकि शेल दूसरा है ही नहीं ना, एक ही शेल है। बट यहां पर अब दो शेल्स हैं। तो इनर शेल में दो हैं, आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है बेटा। जबकि प्रोटॉन्स कितने हैं इसके, इसके प्रोटॉन्स कितने बेटा, तीन है। तो इसका मतलब थ्री के ऊपर अगेन, थ्री प्रोटॉन्स पे क्या प्लॉट होगा, थ्री प्रोटॉन्स पे अगेन, आप देख सकते हो, ये मिटाता हूं पहले फिर वापसी बना लूंगा पहले। थ्री प्रोटॉन्स पे बेटा, थ्री प्रोटॉन्स पे क्या प्लॉट होगा, वन प्लॉट होगा। क्योंकि आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कह रहा है। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं लिथियम के पास, लिथियम के पास होते हैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, जबकि उसका प्रोटॉन नंबर कितना है, थ्री है। तो सिर्फ ये जो डिप आ गया ना, ये लिथियम के आउटर शेल की वजह से, कि वो वन पे वन था हाइड्रोजन में, टू पे टू था हीलियम पे, बट लिथियम पे प्रोटॉन नंबर तो थ्री है बट आउटर शेल इलेक्ट्रॉन सिर्फ वन है। ये वाली बात है बेटा। तो नाउ आर यू गेटिंग इट और नॉट? ठीक है, क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया बेटा, बता दो मुझे, प्लीज बता दो। ठीक है बेटा, अच्छा। सही है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल दो तीन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होते हैं, कोई एक पूछ लेता है तो उससे भी क्लियर हो जाता है, वो भी ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि जिसको जो क्वेरी वो पूछे, हाँ, नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेरीज कैन अराइज इन लेटर टाइप ऑफ टॉपिक्स विच आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें अलग 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 तरह के कॉन्सेप्ट, तो किसी को किसी चीज में इश्यू है, किसी किसी चीज में इश्यू है, वो एक अलग। बट एट द मोमेंट वी टॉकिंग अबाउट वेरी बेसिक चैप्टर। हाँ, ऑल्दो आई वुड से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बच्चे इसमें नहीं मार्क लेते हैं, तो दिस हैड टू बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस वे। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ बेटा कि जो फर्दर हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ अवेलेबल है, जिनमें अगेन आई वुड ओनली से कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड क्वेश्चंस हमने करने हैं, तो वो आप लोग कर सकते हो होमवर्क में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हम डिस्कस कर सकते हैं वैसे। हाँ, बैकग्राउंड से दो क्वेश्चन ये कर लेते हैं लास्ट ना, 25-26 करके फिर थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस इजी हैं वो वैसे तो काफी, और फिर आप सीधा आ जाओगे उस पे होमवर्क पे, आई विल गिव यू दिस। ओके। अ बीम ऑफ पार्टिकल्स कंटेन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मैंने काफी डिटेल में इस चैप्टर के अंदर शुरू वाली बातें बताई उमर अब्बास। यस यस, ऑब्वियसली ऑब्वियसली आई विल बी सेंडिंग दिस बेटा। दैट इज वाई ना, तभी तो मैं होमवर्क दे पाऊंगा, उसमें से मार्क करके आप लोगों को, कि ये वाले क्वेश्चंस करने एमसीक्यू से और ये वाले थ्योरी से। A beam of particles contains neutrons, protons and electrons. The beam is passed between charged plates. ठीक है ना? देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, चार्ज प्लेटों के बीच में से इन्हें ऐसे भेजा जा रहा है। तो आपको तो पता है चार्जेस के बारे में। अब देखो अगेन, ये सवाल इतना आपको लगेगा ना ऐसा कि आप बोलोगे ये तो मतलब जो है बहुत ही बेसिक है, अब बहुत जल्दी आंसर पकड़ लोगे, जैसे हमने पकड़ भी लिया आंसर अभी। ठीक है, हम देखते हैं इफ दैट इज राइट और नॉट। विच डायग्राम शोज हाउ द पार्टिकल्स आर अफेक्टेड बाय प्लेट्स। बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबसे पहली चीज तो ये न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। तो ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा ना नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, तो न्यूट्रॉन जाना चाहिए बीच में से बिल्कुल सीधा। बीच में से बिल्कुल सीधा जाते हुए न्यूट्रॉन या तो हमें दिख रहा है ए में, या तो हमें दिख रहा है ये डी में। ठीक है बेटा। तो उस हिसाब से बी तो हमने कर दिया रॉन्ग, और सी को भी हमने कर दिया रॉन्ग, वेरी इजीली, वेरी इजीली, सिर्फ न्यूट्रॉन के बेसिस पे दो ऑप्शन यूं कट गए बेटा। कैसे कट गए? न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल चीज किसी भी चार्ज से इफेक्ट ही नहीं होगी, वो तो सीधी निकल जाएगी। तो जब वो सीधी निकल जाएगी बेटा, तो या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन डी है। तो बी और सी हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, एक चीज ने हमें वो क्लियर कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा ए और डी के कंपैरिजन पे। अच्छा, अब ए में इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, क्या लिखा हुआ है उमर ने, लेट मी चेक। मरियम ने लिखा है डी ऑप्शन लग रहा है मरियम को, एंड उमर ने लिखा है ई इज नॉट, वेट वेट वेट, पॉजिटिव चार्ज।
बेटा ई का जो अपना, बेटा आप लोग प्लीज गौर से सुन लो, मैं क्या बता रहा हूं, मिस्टेक हो सकती है। ई जो है बेटा दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज होता है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना। और जो प्रोटॉन होता है बेटा वो खुद होता है पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो जो लोग डी कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं डी? डी आप देखो बेटा, आप लोग मिक्स कर रहे हो, आप जो चार्ज जिसका है ना उसकी तरफ भेज रहे हो, ऐसा नहीं होता बेटा। प्रोटॉन खुद क्या है? प्रोटॉन खुद पॉजिटिव है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है नेचर में, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो बेटा जो नेगेटिव है वो नेगेटिव की तरफ थोड़ी जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव की तरफ थोड़ी जाएगा। ए को देखो, ए को देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना बेटा, तो वो किसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ बेंड होता हुआ नजर आ रहा है? पॉजिटिव की तरफ, देखो इसकी तरफ जा रहा है ये। ठीक है। और नेगेटिव प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज, वो किसकी तरफ जा रहा है? नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और न्यूट्रॉन अगेन क्या है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन की वजह से हमें पता चल गया कि भाई न्यूट्रॉन तो बीच में है, तो या तो ए होगा या डी होगा। ठीक है। बट हमने फर्दर कैसे कंफर्म किया कि ये ए है? बेटा इलेक्ट्रॉन इज इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज। जो चीज नेगेटिव है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगी ना बेटा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगी। अच्छा, इस हिसाब से ए ऑप्शन तो हमें मिल गया, बट एक और चीज जो पूछी नहीं है उन्होंने, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप ये देखो कि प्रोटॉन जितना मूव करा है, इलेक्ट्रॉन ने उतना मूव नहीं किया, उससे ज्यादा मूव किया है। क्या मुझे कोई इसका आंसर बता सकता है क्यों आपको नजर आ रहा है ऐसा, जबकि ये पूछा नहीं है? फिर भी आई वुड लाइक टू नो इफ एनीवन नोज दिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मुस्फिरा उमर, बेटा ये आंसर ए है इंस्टेड ऑफ डी दैट यू हैव रिटन। तो इसको जरा देख लेना। बिकॉज न्यूट्रॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज। फातिमा क्या लिख रहे हो बेटा, न्यूट्रॉन्स क्यों पॉजिटिव चार्ज होंगे? जी जी बेटा, आंसर इज ए। एवरीवन, आंसर इज ए। और पहले तो मैं इसको टिक कर देता हूँ, ठीक है, और अगेन आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ पे हो रहा है मामला। देखो सी क्यों नहीं है? बिकॉज न्यूट्रल कौन सा है? न्यूट्रॉन, जो बीच में से सीधा आ जाना चाहिए था। ठीक है। तो न्यूट्रॉन होना चाहिए था बीच में सीधा, तो प्रोटॉन आ रहा है इसमें, तो ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। ठीक है। अच्छा, बी ऑप्शन हो गया रॉन्ग अगेन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इसमें सीधा आ रहा है बीच में से, जो कि अगेन नहीं आ सकता। तो ये दो ऑप्शंस तो कट गए, यहां तक तो किसी को इशू होना ही नहीं चाहिए, आई पर्सनली बिलीव। अगेन नाउ वी लेफ्ट विद ओनली ए एंड डी। सम ऑफ यू आर सेइंग ए, सम ऑफ यू सेइंग डी, सॉरी। बिकॉज आप लोगों को लग रहा था कि जो पॉजिटिव है वो प्रोटॉन है तो वो ऊपर जा रहा है, नेगेटिव है तो ऐसा नहीं है बेटा। जो चार्ज प्लेट है ना बेटा, इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल खुद पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना बेटा। फिनोमेना क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल, यानी सेम चार्जेस तो एक दूसरे से रिपेल करते हैं, जो एक जैसे होते हैं। और अनलाइक चार्जेस या ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, मतलब जो डिफरेंट है वो अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। न्यूट्रॉन सीधा सीधा चले आएगा। तो डी में तो ऐसा नहीं नजर आ रहा है बेटा, हमें तो ऐसा ए में नजर आ रहा है। ए के अंदर प्रोटॉन जो है क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो इट इज शोइंग, बीइंग शोन मूव टुवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट, इसकी तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद नेगेटिव होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो वो पॉजिटिव वाले की तरफ जा रहा है। मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा, ए ऑप्शन तो फाइनल हो चुका है बेटा। मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था फातिमा और बाकी सब लोग, कि ये नहीं पूछा है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ क्यों जा रहा है। आप ये देखो बेटा कि इलेक्ट्रॉन कितना मूव करा है और प्रोटॉन कितना मूव करा है, डिस्टेंस देख रहे हो ज्यादा है दोनों में। तो इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली प्रोटॉन की मूवमेंट से ज्यादा क्यों मूव कर रहा है पॉजिटिव की तरफ? इसका आंसर मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछा है, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। एनीवन, इफ एनीवन हैज द आंसर। बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कंपैरेटिवली प्रोटॉन से काफी कम है, आपको पता है।
तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से ये मूवमेंट मिल जाती है क्योंकि वो बहुत लाइट है, तो बहुत ज्यादा मूव कर रहा है। और प्रोटॉन क्योंकि उसके मुकाबले में इतना लाइट नहीं है, बहुत कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हैवी है, तो उसकी मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं हमें नजर आ रही है ऑन द चार्ज प्लेट। ये तो एक सेपरेट बात है। आंसर इज ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज मुझे बता दो बेटा, प्लीज मुझे बता दो। अबीरा, आयशा, ईमान, फातिमा, हमना, अहमद, मरियम, मुस्फिरा, मोहम्मद जमील, उमर अब्बास, सारा शिराज। ठीक है बेटा। सो अगेन कुछ भी हो पूछ लेना बीच में से। मूविंग ऑन टुवर्ड दिस लास्ट, ये तो बहुत इजी है बेटा, जल्दी से बता दो इसका आंसर मुझे। द एटम पी एंड एस हैव द सेम व्हाट, सेम क्या है इन दोनों में? सेम क्या है इन दोनों में? निकाल सकते हैं ना हम बेटा। अगर एटम है दोनों बेटा, तो एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स जो हैं, इसका 15 है, इसका 16 है, तो नजर आ रहा है कि डिफरेंट है, तो बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकते। पूछ रहे हैं क्या सेम है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम नहीं हो सकते। एटम है मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसमें 15 प्रोटॉन है तो 15 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 16 प्रोटॉन है तो 16 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स भी इन दोनों के अंदर क्या है? डिफरेंट है, 15 16 का फर्क है। ठीक है, न्यूक्लियॉन नंबर होता है बेटा मास नंबर। मास नंबर इसका है 31 और इसका है 32, हमें नजर आ रहा है। तो देखो, बिना सही जवाब की तरफ जाए, गलत जवाब को कट करके ही मैं सही जवाब की तरफ पहुंच गया, जो आप लोग भी दे रहे हो कब से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं बेटा? मास नंबर में से हम माइनस करते हैं प्रोटॉन नंबर को। क्या आंसर आएगा बेटा? 16 आ जाएगा। और इसमें क्या करेंगे? 32 है लेकिन निकालेंगे 16, क्योंकि वो 16 है। तो इसका भी 16 आ जाएगा बेटा। दोनों का 16 आ रहा है, मतलब दोनों में क्या सेम है बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बाकी जो है वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आप लोगों ने करने हैं होमवर्क में। वी हैव a few minutes left although, but we can like extend it a bit and discuss some of the theory questions। theory questions काफी इजी है कंपेरेटिव जो आप लोगों ने करने हैं। लिटरली इस तरह की चीजें आती हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्योरी एग्जामिनेशंस में, जो कि आप बड़ी इजीली फिल कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, देन आई कैन गिव यू सम ऑफ देम इन दी homework, and we can end this set of topics of atomic structure. Then we can move on to the next chapter after the test, although which won't be conducted in my regular classes, that will be on a separate class day, ताकि वो हमारी क्लासेस के साथ वो ना करे, कोलाइड ना करे। क्वेश्चन वन की तरफ आते हैं जल्दी से बेटा। पार्टिकल ये दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है, और उसके साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अननोन है, और दूसरे वाले के लिए वो तीनों लिखे हैं और पार्टिकल अननोन है, ये फिल करना है। ठीक है, मैं ये फिल कर रहा हूँ आपके लिए पहला वाला, तो आपने मुझे बताना है आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। पार्टिकल है बेटा, क्या है? पी। तो ये क्वेश्चंस लिटरली आपके एग्जाम क्वेश्चंस हैं, ये आते हैं आपसे पूछे आते हैं, यू गेटिंग फ्री मार्क्स। 30 और 15, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 15, ऑब्वियसली एवरीवन नोज। ठीक है, कैसे? कंपेयर द टेबल अबाउट द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन टू पार्टिकल। अच्छा, अगर यहां उसने एटम नहीं लिखा है तो क्या होता है? चार्ज तो नहीं है ऊपर कोई, और हम किसी आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक सब्सटेंस की बात तो नहीं कर रहे हैं, कि चार्ज पार्टिकल की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो दैट मीन्स के इसके अंदर हमारे पास जो है प्रोटॉन्स हैं 15, इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही हैं 15, और न्यूट्रॉन्स हमने निकाले 30 में से 15 सब्ट्रैक्ट करके, दैट इज ऑल्सो बेटा 15। ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या है? यहां पर अगेन एक छोटी सी चीज बॉन्डिंग रिलेटेड आ गई है। यहां पर क्या है बेटा? जो मास नंबर होता है वो कैसे निकलता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके। न्यूट्रॉन्स हैं 16, प्रोटॉन्स हैं 15, दोनों को ऐड किया, आंसर आ गया 31। और 15 वाले प्रोटॉन्स के एलिमेंट की ही बात हो रही है, तो फास्फोरस की ही बात हो रही है, इसका मतलब है फास्फोरस की बात हो रही है। 15 इसके अंदर यहाँ आ जाएगा। और बेटा
16 15 कितना होता है, 31 होता है। तो 31 जो है बेटा हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा। यस यस यस, दिस इज एन आइसोटोप, यस ऑब्वियसली, क्योंकि मास डिफरेंट हो गया ना बेटा, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो गए ना सिंपली। इसमें 15 न्यूट्रॉन्स है, इसमें 16 न्यूट्रॉन्स है। बट एक चीज और है, जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स इसमें 3 ज्यादा हैं, तो इस पे बेटा बस एक 3 नेगेटिव का चार्ज भी साथ में आ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली एज आई सेड कि ये थोड़ा सा बॉन्डिंग रिलेटेड चीज है। ये थोड़ा सा हो रहा है यहाँ पे। ये फाइल थोड़ी सी जो है हैवी फाइल है, इसलिए इट इज सम टाइम कॉजिंग इश्यूज लाइक दिस, कि वो इस पे सेट नहीं हो रहा है, बट हो गया है। दिस इज हाउ यू राइट इट। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन पे, a barium ion has the formula this, complete the table about this ion। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने। इलेक्ट्रॉन्स आप फिलहाल छोड़ भी सकते हो, बिकॉज अगेन दिस इज अ पॉजिटिव आयन, जो कि बॉन्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन्स इसके अंदर बेटा कैसे निकाले जाएंगे, 138 से 56 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स तो हमारे पास ऑलरेडी 56 यहाँ लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को हम स्किप कर रहे हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर, ये आ गया। अगेन नेगेटिव आयंस आ गए हैं, नेगेटिव आयंस आ गए हैं, पॉजिटिव आयंस आ गए हैं। ठीक है। तो ओवरऑल बेटा एमसीक्यूज में फिर आपने देखा कंपैरेटिवली जो चीजें थी ज्यादा डिफिकल्ट थी इस चैप्टर के लिए, खास तौर पे इफ आई एम सेइंग लाइक कंपेयर करते हुए अगर दोनों को। एंड अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्योरी में आपको इतना ज्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा जाता इन दीज, इवन इफ यू सी। अगेन इसको मैं आप लोगों को कुछ करने को दूंगा होमवर्क, बट अगेन दोज वंस which are not having charged particles. I know that you might very well know about the charged particles, but we will be doing bonding, then we will be revisiting these questions जिसमें ये चार्ज पार्टिकल्स से, आयनिक बॉन्डिंग वाले चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स से रिलेटेड हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा। यहाँ पर जैसे ये टेबल आपको मैंने खुद बताया था, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, आप लिखोगे -1, न्यूट्रॉन का 0। रिलेटिव मास क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए जनरली हम लिखते हैं बेटा 1/1840, न्यूट्रॉन का 1, और प्रोटॉन के लिए भी वी कैन राइट 1। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद यहां से भी कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी। व्हाट इज द न्यूक्लियर नंबर फॉर पार्टिकल ए। न्यूक्लियर नंबर क्या होता है बेटा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम। प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, 37, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 48। 48 37 आप ऐड करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 85, तो 85 विल बी योर आंसर। एक्सप्लेन व्हाई पार्टिकल बी इज अ नेगेटिव आयन, अगेन वही चार्ज वाली चीज आ गई। विच टू एटम्स आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अगेन विच टू एटम्स। तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम होने चाहिए, और इसका न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो प्रोटॉन्स हमारे पास कौन कौन से हैं बेटा, यहाँ पर 92 90 92 तीन ऐसे हैं जो मैं दिख रहे हैं सेम, और साथ साथ बेटा सेम मास नंबर, सेम इलेक्ट्रॉन नंबर भी होना चाहिए। ये जो है ना एटम नहीं होगा आइसोटोप का, ये आयन हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। तो एटम की अगर बात हो रही है बेटा, दैट मीन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए। तो 92 92, सी एंड ई आर द आंसर्स। और हम एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे इसमें, बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि इसने कहा है एटम्स, आयंस वाला केस नहीं हो सकता, सी एन ई, इसी वजह से था। आगे आपसे ये जैसे कुछ क्वेश्चंस में ये पूछता है सिमिलरिटी क्या होती है आइसोटोप्स में, आप बताते हो प्रोटॉन नंबर, डिफरेंस क्या होता है मास नंबर या न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स पूछ ली है। वेरी इजी, वेरी इजी। और उसके साथ आपसे आइसोटोप्स की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। क्या डेफिनेशन होती है बेटा आइसोटोप्स की, बहुत रेगुलरली आपसे पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। सो लाइक दीज आर द क्वेश्चंस, एंड उसमें हमारे पास ये क्वेश्चंस जो हैं एंड भी हो जाते हैं। एंड इसी के साथ साथ जो इन क्वेश्चंस में से रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देने हैं, आई विल बी गिविंग यू, एंड देन यू कैन डू द टेस्ट।
तो प्लीज बेटा मुझे बता दो, यहाँ तक जो भी हमने किया है, द होल चैप्टर इज एंडेड इवन विद द क्वेश्चंस, वी कैन डू मैक्सिमम फॉर दिस, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बेसिक डिस्कशंस हैं, बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस हैं, स्लाइट बिट कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज हैं, जिसमें दूसरे टॉपिक्स मर्ज्ड हैं ज्यादा, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट कंप्लीटली be doing these directly, because later on when we do more topics we can revisit some of the questions. ठीक है बेटा? तो यहाँ तक इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक चीज आपको अगर क्लियर है, या जो लोग बाद में भी आए हैं उनको जो चीजें रिसेंटली कर रहे हैं वो क्लियर है, प्लीज मुझे बता दो। कोई भी इश्यू है, इफ यू आर हैविंग अ सिंगल इश्यू इन एनी ऑफ द थिंग्स, प्लीज टेल मी। मोहम्मद जमील, मरियम, सारा, शिराज, उमर, हमना, फातिमा, ईमान, आयशा, अबीरा, मुस्फिरा। ठीक है बेटा, तो I hope everything is actually clear to all of you in today's class and up till now in this whole chapter. I'll be sending you the file and also the homework regarding this. Take care, everyone. Allah Hafiz.